Okay. Assalamu alaikum everyone. I think we are good to start today's session. आज का session start करते हैं यहाँ पे. So let's see what we have done till now. O level evening, and here you go. So in this chapter till now we have discussed about the networks. We talked about the networks when two or more than two systems are connected through wire or wirelessly, they form a network. Then we differentiate between www and internet. We also discuss about the protocols. After that, we discuss about the ISP as well, that the main purpose of ISP is it provides us an IP address through which we connect to the internet. Then we talk about the IP version 4, IP version 6. Then we talk about the format of IP version 4. And after that, we differentiate between the private IPs and the public IPs. We also talked about the client server model. And we also talked about the URL stuff in this chapter. And we talked about the DNS, MAC address in our last session we were talking about, and why we changed the MAC address, why LLA, to bypass certain firewalls, or this is the requirement of certain softwares, and to bypass certain filters. And in our last session, we were talking about the HTML, hypertext markup language. And I told you people that it's not a programming language, it's a tagging language. And this is one of the basic breakup of a web page, that a web page is divided into two parts. The first part is called the header, and the next part is called the body of the web page. Now, आज हम लोग अपना second last दो topics हमारे पास remaining इस chapter के अंदर, so we are going to complete this chapter आज के session के अंदर बच्चों. Starting with the first part, this part is called HTML, structure versus HTML presentation. बच्चों, I told you people कि अगर एक आपके सामने वेब पेज है, तो इस वेब पेज के अंदर जो इमेजेस हैं, जो आपके पास इमेजेस हैं, they are considered as the structure. आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, that is a structure. आपके पास पैराग्राफ लिखा हुआ है, that is a structure. But the border around the image, the font size, the font color, the font style is considered as HTML presentation. तो आपका वेब पेज किस तरह दिखता है, that is counted in HTML presentation. और जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं आपके वेब पेज के, जो आपके बिल्कुल बेसिक सारे एलिमेंट्स हैं, all those basic elements are considered as HTML structure. Now, when we differentiate between both of them, अगर मैं यहाँ पे जरा differentiate करूं दोनों के दरमियान, so starting with the first part, when we talk about the definition for the HTML structure, so HTML structure is actually basic layout of a web page. Basic layout of a web page. And when we talk about HTML presentation, so this is how W को क्या हो गया भाई मेरे, how your web page will look like. HTML structure के अंदर बच्चों आपके पास एक और चीज आती है, that is called
It includes semantics. तो HTML स्ट्रक्चर इंक्लूड करता है सिमेंटिक्स. सिमेंटिक्स क्या होते हैं आपके पास? सिमेंटिक्स आर एक्चुअली गिव meaning to a web page. And when we talk about HTML structure, so बच्चों क्या क्या आता है स्ट्रक्चर के अंदर? All the text, paragraph, images, they are counted in HTML structure. ये सब चीजें बच्चों आर पार्ट ऑफ HTML स्ट्रक्चर का पार्ट है. ये सारी चीजें आपके पास. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट HTML प्रेजेंटेशन, सो HTML प्रेजेंटेशन के अंदर हाउ योर वेब पेज लुक लाइक, और इट इंक्लूड्स color of text, font style, font size, background color, so these are the part of HTML presentation. अब बच्चों मेजर चीज के ऊपर आते हैं प्रेजेंटेशन के अंदर. दिस इज द मेन पॉइंट दैट यू शुड नो. HTML presentation can be applied using 3 different methods. The first method is called inline. इनलाइन के अंदर बच्चों क्या करते हैं हम लोग? अब प्रेजेंटेशन अप्लाई कैसे करते हैं? द फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड इनलाइन. व्हाट वी डू इनलाइन, कि एक लाइन के अंदर हम लोग क्या करें? प्रेजेंटेशन अप्लाई करें. सर समझ में नहीं आया, मतलब क्या हुआ इसका? तो बच्चों व्हेन वी अप्लाई, मैंने यहाँ पे पहले लिख लिया इसको. व्हेन वी अप्लाई presentation in one line, like for example मेरे पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ था, that text was Mac. तो मैंने क्या किया? उस टेक्स्ट को बोल्ड कर दिया. मेरे पास एक टेक्स्ट था Mac, तो मैंने इस टेक्स्ट को क्या किया? बोल्ड कर दिया. तो बच्चों दिस इज हाउ मैंने प्रेजेंटेशन अप्लाई करी है, बट ओनली इन वन लाइन. सिर्फ एक लाइन में मैंने प्रेजेंटेशन अप्लाई करी है. तो दिस इज हाउ. अगर आप एक किसी लाइन के अंदर कोई पर्टिकुलर स्टफ, कोई चेंज, कोई प्रेजेंटेशन आप चेंज करें, तो दैट प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड इनलाइन. द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड, अगली कहलाती है बच्चों आपके पास, दैट इज इंटरनल. सो प्रेजेंटेशन कैन बी अप्लाइड इंटरनल एज वेल. सो इंटरनल में क्या होता है आपके पास? इफ
Yeah, we can say the code contain the presentation part as well. So इंटरनल में बच्चों क्या होगा, जो आपका कोड है HTML का, उसी कोड के अंदर क्या होगा, प्रेजेंटेशन का भी सारा स्टफ अवेलेबल होगा. ठीक है. इनलाइन के अंदर एक लाइन में आप प्रेजेंटेशन अप्लाई करना चाहते हैं. इंटरनल जो आपका कोड है प्रेजेंटेशन का, दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द आपकी HTML फाइल के अंदर. एंड द लास्ट स्टफ बच्चों इज कॉल्ड एक्सटर्नल. The last method is called external, and external आपके पास is the main. This is most commonly used. Most common type of HTML presentation. इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, presentation is applied using an external file. तो हम लोग यहाँ पे एक एक्सटर्नल फाइल यूज करते हुए क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन अप्लाई करते हैं. इनलाइन के अंदर एक लाइन में, इंटरनल के अंदर कोड के अंदर ही आपके पास प्रेजेंटेशन आ गई. एक्सटर्नल के अंदर व्हाट वी डू, वी यूज a separate file for the presentation, and बच्चों we call that file, we name that file, we name that file as CSS. अब आप लोगों ने मे भी पॉसिबल शायद CSS का नाम सुना हो. CSS stands for cascading style sheet. So these are the three methods through which we can apply the presentation. Remember one thing, कि ये जो क्लास के लेक्चर्स हैं बच्चों मेरे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. आप जब अपनी कैम्ब्रिज की तैयारी करने बैठेंगे अपने ओ लेवल 2022 सेशन की इंशाल्लाह ताला, तो आपकी 95% तैयारी मेरे क्लास के लेक्चर से ही हो जाएगी. ठीक है. जो क्लास में मैं आप लोग को लिखवा रहा हूँ, लाइक अगर मैं एक ही कोई चैप्टर ओपन करता हूँ, डाटा फॉर्मेट्स, तो जो क्लास में मैंने आप लोगों को सारे काम करवाए हैं, ये मतलब आप लोग की बच्चों, दिस इज मोर देन इनफ फॉर द एग्जामिनेशन. आप लोग की पूरी एग्जाम की तैयारी, पूरा स्टफ अवेलेबल, आप लोग की तैयारी 95% हो जाएगी आप लोग की. ठीक है. सो वट एवर यू नीड टू आंसर, प्रॉपर वर्डिंग, प्रॉपर स्टफ, ये क्लास के लेक्चर के अंदर सारे अवेलेबल हैं. सो क्लास लेक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. और आई विल अपलोड दीज लेक्चर्स ऑन माय ग्रुप एज वेल. जो पोर्टल आप लोग को मैंने प्रोवाइड करा हुआ है, तो उसके ऊपर भी मैं आज रात तक ये सारे लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा. सो यू कैन डाउनलोड and you can make your own copies of the lectures as well. Now let me check if you have any questions till now. Let's see. No, we are good. So bachcho, if you have any questions, any thing, feel free to write on Mac chat. So I will be answering your queries. अभी हम लोगों ने क्या बात करी, सिर्फ हम लोगों ने HTML स्ट्रक्चर और HTML प्रेजेंटेशन के दरमियान हम लोगों ने डिफरेंशिएट करा है. ठीक है. HTML structure is just the layout, and presentation how that layout will look like. ठीक है. सो एक इमेज में अगर मैं आप लोग को दिखाऊं जरा, आई रिमेम्बर एक बड़ी अच्छी सी इमेज थी, वो खैर मेरे पास शायद आई इंक्लूडेड दैट इमेज इन नोट्स. सो वी कैन सर्च दैट स्ट्रक्चर वर्सेस presentation of HTML. I remember that was a funny image, बड़ी funny सी image थी, लेकिन वो बड़ा अच्छा डिस्क्राइब कर रही थी आपको स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन को. अगर कहीं मुझे वो इमेज नजर आए, यस, हियर यू गो. सो बच्चों देखें, ऑल्दो एक HTML आप लोगों को पता है एक हेड और बॉडी के ऊपर कंसिस्ट करता है, लेकिन जब इसके ऊपर प्रेजेंटेशन अप्लाई कर दी जाएगी तो फिर दैट
that web page will be having a look. Without that appearance, without the CSS, without the presentation, your page will look like a skeleton. So that was one of the picture. मैंने शायद notes में भी ये picture include करी है. Okay, we have a question बच्चों. Fatma is asking, sir, inline internal में ही होता है? Yes, फातिमा बेटा बिल्कुल. If you are talking about the inline, तो inline आपके पास indirectly internal के अंदर भी include होगा, because you are applying the code. देखिए थोड़ा सा बस डिफरेंस ये होता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर सिर्फ एक लाइन के ऊपर आप अगर अप्लाई कर रही हैं अपनी प्रेजेंटेशन, so that is inline. लेकिन अगर आपने पूरा एक सेपरेट कोड रखा हुआ है, लाइक दिस इज द वेब पेज, आपका एक कोडिंग हुई है, आपने एक अलग से प्रेजेंटेशन का कोडिंग पार्ट आपने अलग से किया हुआ है कि जब भी आपका प्रेजेंटेशन अप्लाई करनी हो, रेफर टू दिस कोड. लेकिन दिस इज इनसाइड द HTML फाइल, सो दिस इज काउंटेड एज इंटरनल. और इनलाइन एक पर्टिकुलर लाइन के ऊपर आपको अप्लाई करना है कोड, सो दैट विल बी इनलाइन. ठीक है, तो बस दिस इज जस्ट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इनलाइन एंड इंटरनल. नाउ बच्चों, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एंड दिस टॉपिक इज कॉल्ड cookies. So when we talk about cookies, I hope these are not the cookies that we eat. ये cookies बच्चों थोड़ी सी different होती हैं आपके पास. और before I explain you cookies, थोड़ा सा अगर मैं आप लोग को explain करूं यहाँ पे about the cookie is, let's say this was your web browser. ये आप लोग का वेब ब्राउजर था और आप लोग जाके एक ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे थे. आप लोग जब आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप लोग कुछ अपनी डिटेल्स वगैरह एंटर करते हैं. आप लोग वो एक होता है ना ऐड टू कार्ड, तो आप लोग का कार्ड के अंदर मटेरियल आके ऐड हो रहे होते हैं. तो बच्चों ये आपका वेब जो ऑनलाइन शॉपिंग हो रही होती है, दिस इज एक्चुअली योर वेब सर्वर. ये क्या होता है आपका? दिस इज योर वेब सर्वर. ये वेब सर्वर जो चीजें आप लोग ऐड कर रहे होते हैं अपने कार्ड के अंदर, ये परमानेंटली स्टोर करवा रहा होता है आपके वेब ब्राउजर के अंदर. सो ये एक फाइल के अंदर आपकी सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा होता है. लाइक आपने कौन सा आइटम सेलेक्ट करा, आपने कौन सा आइटम परचेज करा, योर पासवर्ड, योर आईडी, योर लॉगिन, योर यूजर नेम, योर ऑर्डर ट्रैकिंग आईडीज, योर क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन. सो ये सारी चीजें आपका जो ऑनलाइन सर्वर होता है, जो आपका वेब सर्वर होता है, वो वापस से आपके ब्राउजर के अंदर परमानेंटली स्टोर कर रहा होता है in a file, and that file is called cookies. In a file that is called cookies. तो अगर मैं यहाँ पे cookies को पहले बच्चों अगर डिफाइन करूं तो cookies क्या होती हैं? They are nothing, they are just small text files. They are small text files they are stored on users, या you can say client computer. ठीक है, आप लोगों को मैंने बताया था ना क्लाइंट सर्वर मॉडल. इफ आई शो यू पीपल, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, कहाँ चला गया? ये रहा.
सो क्लाइंट सर्वर मॉडल, ये आपका सर्वर होता है, ये आपका क्लाइंट होता है। तो क्लाइंट के सिस्टम में क्या होता है, ये आपकी फाइल्स आर स्टोर्ड। स्टोर्ड ऑन यूजर या क्लाइंट कंप्यूटर, दे आर स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स। ये फाइल भेजता कौन है आपको, वेब सर्वर। सेंड these files to web browser, and of course the web browser is of the client. ठीक है। फर्दर जर्नली ये आपके पास बच्चों क्या स्टोर करता है, इनका साइज क्या होता है, 4 KB is the file size of one cookie, and you should know generally cookies stores the browsing information of user। बच्चों just give me a minute, I'm coming back, just give me a minute। ओके आई एम बैक। तो मैं आप लोग को बता रहा था अबाउट द कुकीज, स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स स्टोर्ड ऑन क्लाइंट कंप्यूटर। वेब सर्वर सेंड करता है ये फाइल आपके वेब ब्राउजर को। 4 KB 4 KB इज द जर्नल साइज ऑफ अ कुकी फाइल। अगर इससे ज्यादा होगा तो यू आर गोइंग टू क्रिएट अनदर कुकी फाइल, लेकिन एक फाइल में 4 KB से ज्यादा स्टोर नहीं होता बच्चों। फर्दर कुकीज स्टोर क्या करती हैं, आपकी ब्राउजिंग इंफॉर्मेशन स्टोर करती है, ये आपके पास आपकी ट्रैकिंग स्टोर करती है बच्चों, ट्रैकिंग ऑफ अ यूजर, ट्रैकिंग ऑफ
ब्राउजिंग एक्टिविटीज स्टोर करती हैं बच्चों ये कुकीज आपके पास। अब ये तो एक जर्नल बातें कर ली हम लोगों ने अबाउट द कुकीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ कुकीज। वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ कुकीज बच्चों। हमारे पास दो टाइप्स की होती है कुकीज। The first type of cookie is called persistent cookies. Persistent, yeah, you can also say they are permanent cookies. And the next type of cookies are called session cookie. So we are having two types of cookies, session cookie and persistent cookie. तो बच्चों session cookies are very simple and generally हम लोग जो ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह कर रहे होते हैं, so वहां पे आपके पास क्या होता है, ये आपकी ये कुकीज सेशन कुकीज यूज हो रही होती है। दे आर टेम्पररी इन नेचर, टेम्पररी मेमोरी कंज्यूम करती हैं बच्चों आपके पास, एंड डजंट या डज नॉट स्टोर पर्सनल इंफॉर्मेशन and they are ended when session between web browser and web server is closed. तो बच्चों आपने क्या किया, लेट्स से आपने अपने वेब ब्राउजर के ऊपर एंटर करा, लेट्स से daraz.com या व्हाटएवर, कोई ऑनलाइन आप लोगों ने वेब सर्वर के ऊपर ऑनलाइन अप्रोच करा। तो अब ये क्या होगा, आपके पास कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया बिटवीन द वेब ब्राउजर एंड द वेब सर्वर। तो ये कुकीज आपकी रिटेन करेंगी, लेकिन जैसे ही आप अपना वेब ब्राउजर क्लोज करेंगे, जैसे ही आप अपना सिस्टम बंद करेंगे, जैसे ही आप अपने वेब ब्राउजर का इवन टैब भी बंद करेंगे, तो ये जो आपका टेम्पररी सेशन स्टोर हो रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी क्लोज्ड, खत्म हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सेशन कुकीज। एक सेशन स्टैब्लिश है आप दोनों के दरमियान, एक सेशन स्टैब्लिश है आप दोनों के दरमियान। व्हेन दिस सेशन इज एंडेड, तो कुकीज भी क्या होंगी, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगी। इन कुकीज का कोई एक्सपायरी टाइम नहीं होता, नो एक्सपायरी टाइम। जब तक सेशन चल रहे आपके पास सेशन कुकीज होंगी, सेशन क्लोज हुआ आपके पास दे आर गॉन, they are not retained in the memory. When the session is ended, website is closed, the data is gone.
और जर्नली हम लोग बच्चों इसके अंदर आपके पास जो स्टोर हो रहा होता है आपके पास मेनली सेशन कुकीज आपके पास स्टोर कर रही होती है वर्चुअल शॉपिंग बास्केट। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि वही ऐड टू कार्ट वाली बात है, तो वी कॉल दैट एज virtual shopping basket. So that is an example of session cookies. Now when we talk about persistent cookies, persistent cookies क्या करती हैं? They are permanent और कब तक ये बच्चों आपके पास स्टोर रहती हैं? until the expiry time. Expiry time is generally, it can be 2 days, it can be 2 months, it can be 6 months. So expiry time जब तक एक्सपायर्ड नहीं होगा, परमानेंट कुकीज जो है वो आपके पास स्टोर रहती हैं। करती क्या है बच्चों ये? रिमेंबर यूजर्स login details, सो जनरली ये क्या करते हैं, आपका यूजर की लॉगिन डिटेल्स बच्चों स्टोर कर लेती है अपने पास। और नेक्स्ट टाइम जब आप वापस से लॉगिन करते हैं उस सर्वर के ऊपर, सो आपके वेब ब्राउजर से डाटा क्या कर लेती है परमानेंट persistent कुकीज, आपके वेब ब्राउजर से डाटा पिक कर लेंगी। सो गिविंग यू अ कस्टमाइज्ड व्यू, एक कस्टमाइज्ड व्यू आपके सामने आता है बिकॉज ऑफ दिस persistent cookies. Now, there are many things that you should know about the persistent cookies. One point that you should know, persistent cookies can store users' password, email addresses, invoices like bills. So persistent cookies can store these stuffs. They also store on web browser. वेब ब्राउजर पे स्टोर हो जाती हैं आपके। इससे फायदा क्या होता है? अनेबलिंग the website to recognize user every time they visit the server. Also tracks user
website histories, they can be used for targeted advertising. लाइक आपका एक जनरल ट्रेंड है कि आप लोग लैपटॉप के उसके अंदर जाते हैं, लैपटॉप को सर्च करते हैं, लैपटॉप को देखते हैं, तो जो आपके पास एडवर्टाइजमेंट आएंगे, तो दोज एडवर्टाइजमेंट माइट बी हैविंग, जो आपके पास टारगेटेड लैपटॉप्स की एडवर्टाइजमेंट आ रहे होंगे. सो दिस इज वन ऑफ द थिंग कि वहां पे आपके पास परसिस्टेंट कुकीज से आपका डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है. Further, you should know there are a few more points about अभी आप लोग बच्चों जो टेस्ट देंगे यहाँ पे ऑन माय पोर्टल, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं. तो ये ब्राउजर आप लोग से ऑटोमेटिकली क्या करवाता हूं, मैं परसिस्टेंट कुकीज आप लोग की स्टोर करवाता हूं. मैं ही हूं भाई. क्या हो गया भाई, मुझे रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा ये. सर मैं ही पढ़ा रहे हैं भाई. तो जब आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन अभी टेस्ट देंगे अपने अपने पोर्टल के ऊपर, अभी मैं आप लोग को एनेबल करूंगा. नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह ताला पूरा प्रॉपर्ली आप लोग इसके ऊपर लेकर आऊंगा. अभी जो क्लास के लेक्चर है वो भी मैं आज रात को यहाँ पे अपलोड कर दूंगा. जिन बच्चों की आईडीज बन गई है फाइन, जिन बच्चों की नहीं बनी है अपने ग्रुप के ऊपर व्हाट्सएप के अपना ईमेल और फुल नेम ड्रॉप कर दे, तो आप लोग की आईडीज भी बन जाएंगी. तो बच्चों यहाँ पे भी जब आप लोग यहाँ तो अभी कोई क्विज नहीं हुआ है, अगर मैं कोई भी पुराना क्विज खोलूं, ओपन करूं आप लोग के सामने, किसी और कॉलेज का ओपन कर लेते हैं हम लोग. तो जब आप लोग ये अपना क्विज अटेम्प्ट करेंगे, सो व्हेन यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द क्विज, सो इस क्विज के अंदर भी मैं क्या करवाता हूं आप लोग को, ये पूरा क्विज चल रहा होता है, आप लोग के सारे क्वेश्चंस चल रहे होंगे, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. सो इस क्विज के अंदर भी जो मैं आप लोग को सेशन करवाता हूं, मैं परसिस्टेंट कुकीज स्टोर करवाता हूं. उससे फायदा क्या होता है कि आप लोग का सेशन स्टेब्लिश हो जाता है. अब आप लोग किसी और आईडी से आना चाहें, कोई और सिस्टम से आना चाहें, तो फौरन ये सिस्टम मेरा डिटेक्ट कर लेगा और बता देगा नहीं भाई, आप एक जगह पहले ऑलरेडी टेस्ट स्टार्ट कर चुके हैं, वो कंप्लीट करें. एक ही सेशन आप यूज कर सकते हैं, कोई और सेकंड सेशन आप स्टेब्लिश नहीं कर सकते. सो दैट्स द ब्यूटी. मतलब ये परसिस्टेंट कुकीज हमारे पास यहाँ पे फायदा भी देती है आपको. मैंने यहाँ पे बताया कि अलाउ प्रोग्रेस इन ऑनलाइन क्विजेस or even games as well to be stored. And further, allow social sites to recognize certain preferences and browsing.
So बच्चों, these are the few points about the persistent cookies. ये आपके पास परमानेंट होती है until इनका एक्सपायरी टाइम ना आ जाए, या फिर we delete by ourselves, हम खुद से डिलीट ना कर दें, या फिर इनका एक्सपायरी टाइम ना आ जाए। तो वरना ये आपके पास क्या होती है, परमानेंट स्टोर होती है, यूजर का लॉगिन डाटा रखती है, यूजर के पासवर्ड, कार्ड इंफॉर्मेशन, ऑल्सो इनवॉइसेस, कार्ड इंफॉर्मेशन, सो मल्टीपल इंफॉर्मेशन ये आपके पास स्टोर करती है। ये आपको टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट के लिए भी यूज कर ली जाती है आपके पास, ठीक है। ऑनलाइन क्विजेस, सोशल साइट्स, यूजर की हिस्टोरिक इंफॉर्मेशन, सो दीज आर द फ्यू इंफॉर्मेशन दैट persistent cookies store बच्चों। Now let me check if you have any questions till now. Invoices like do a bit of bills वगैरह, इनवॉइसेस कोई आपका बिल था, जनरेट हुआ था, आपने कोई पेमेंट करी ऑनलाइन, सो वो इनवॉइस जो है वो मेंटेन रहेगी आपके वेब ब्राउजर के अंदर। अच्छा बच्चों, समटाइम्स ऑफ कोर्स persistent cookies can be dangerous as well, like your passwords, although they are encrypted, but still अगर एक परमानेंट फाइल आपके वेब ब्राउजर के अंदर रखी हुई है, सो सम हैकर माइट एक्सट्रैक्ट दैट फाइल, और उसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ सकती है, लाइक क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, like your username, like your password, different passwords. So sometimes they can be dangerous as well. Session cookies dangerous नहीं होती आपके पास, but persistent cookies can be dangerous. तो ये पॉइंट भी मैं आप लोग को नोट करवा देता हूं। Because they store sensitive personal information about the user, ठीक है। सो समटाइम्स दे कैन बी डेंजरस एज वेल। सो बच्चों, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर एंड होता है। वी टॉक्ड अबाउट द कुकीज, we talked about the session and the persistent cookies, we talked about the HTML structure versus HTML presentation, the difference between both of them, and how HTML presentation can be applied inline, internal and external as well. And I think we are done. So आज को हम लोग बच्चों यहीं तक होल्ड करेंगे। इंशाल्लाह अगले सेशन में मैं आप लोग को इसके पास करवाऊंगा। मोर ओवर अगले सेशन में बच्चों, अगले सेशन में नहीं, मैं एक वीक बाद आप लोग से थोड़ा सा डिस्कशन भी करूंगा अबाउट द एग्जेम्पशंस एज वेल, ठीक है। ये एग्जेम्पशन क्या होती है, ईदर वी आर गोइंग टू अवेल दैट एग्जेम्पशन और नॉट। असल में कैम्ब्रिज ने आप लोग को एग्जेम्पशन ऑफर कर दिया ऑन पेपर 2, ठीक है। सो ऑल्दो अभी तक कोई ऑफिशियल ईमेल अभी तक जनरेट नहीं हुआ है, लेकिन स्कूल्स के अंदर आ चुका है, सर्कुलेट हो चुका है, आई हैव दैट ईमेल। तो आप लोग से अभी मैं जब तक एक दफा पब्लिक हो जाए वो बात, तो फिर आप लोग से मैं अलग से डिस्कस करूंगा। फिर मैं आप लोग को गाइड भी करूंगा कि इधर हमें पढ़ना चाहिए पेपर 2 या नहीं पढ़ना चाहिए, या व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन पेपर 2। ऑल्दो मैं पढ़ाऊंगा तो जाहिर सी बात है, बिकॉज वरना आप लोग को ए लेवल में जो बच्चे कंप्यूटर साइंस ऑप्ट करेंगे दे विल बी इन अ प्रॉब्लम। तो मैं पढ़ाऊंगा तो जरूर पेपर 2, लेकिन फिर उसकी इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, किस माइंड सेट के साथ हमें पढ़ना चाहिए, बहुत सारी बातें दैट वी नीड टू डू। सो आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।